Hello, class 10 students. Welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today, I'll start the chapter that is carbon and its compound. In this carbon and its compound chapter, I have taught you earlier in my previous videos about carbons, its nature and many more topics. Today, we'll start with a nomenclature of carbon compounds. So before starting nomenclature of carbon compounds, I would like to tell you that there are many more important points and introduction we have to know and we have to learn about it before starting the nomenclature. So this video is an introductory part of nomenclature of carbon compounds. So here in this video, I'll explain you about types of compounds, classification of hydrocarbons, as well as some prefixes used while naming any chemical formula. Okay, so here first of all I'll start with types of compounds. Types of compounds is divided into three parts, that is carbon compound, organic compound, as well as hydrocarbon. So there are three types of carbon compounds basically. Three types of compounds we can say basically, that is first one is carbon compound, second one is organic compound, and the third and the last one is hydrocarbon. Now आप देख सकते हो कि जो मैंने बोर्ड पे लिखा है बेसिकली क्या लिखा हुआ है उससे आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया तो मिल गया होगा. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज कार्बन कंपाउंड से. कार्बन कंपाउंड से आप क्या समझते हैं? कार्बन कंपाउंड कहने के मतलब से ही आप उस वर्ड से ही समझ गए होंगे कि कार्बन कंपाउंड्स मतलब द कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन्स. ओके, द कार्बन्स व्हिच मेक बॉन्ड्स विद ईच अदर और द कंपाउंड इन विच कार्बन्स आर प्रेजेंट. ठीक है, तो दैट इज टर्म्ड एज कार्बन कंपाउंड. सो हियर द सेम, it contains carbon. Carbon compounds contains carbon. कोई भी compound हो जिसमें carbon है, that is known as carbon compound. ये भी carbon compounds है, ये भी carbon compounds है, ये भी carbon compounds, because इन सब में क्या present है? Carbon present है. Okay, for example I have written something like carbon dioxide, methane, C2H12O6. We can say C6H12O6 also, C2H5OH. What is the C2H5OH? Ethanol. Okay, we have studied it earlier in many chapters. Okay, the first was carbon compound, second is the organic compound. The second category in which the compound is divided is the organic compound. Organic compound what? Organic compounds are the compounds which contains carbon and hydrogen. Okay, a compound which contains carbon and hydrogen like CH4, C2H12O6, CH3COOH, C2H5OH. What is this? This is an ethanoic acid, this is ethanol. इतना तो आपको आइडिया हो ही गया होगा इतने सारे चैप्टर्स को पढ़ते पढ़ते. ओके, सो दिस इज मिथेन. सो इन सब में क्या प्रेजेंट है? एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, और भी हैं, ऑक्सीजन भी हैं, लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, बाकी भी होंगे पर कार्बन है हाइड्रोजन है, तो वो क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो ये क्या है? ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. ठीक, नाउ नेक्स्ट द थर्ड वन इज हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखो नाम से आपको समझ में आएगा, हाइड्रोजन एंड कार्बन. ओके, द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन. हियर इट वाज गिवन दैट it contains carbon and hydrogen, but in this hydrocarbons only, take only hydrogen and carbon, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, no oxygen etc. So that will be termed as hydrocarbon. So here see CH4. Anything else? Any different element can you see here? No, only C and S, that is carbon and hydrogen. Here C2H6, carbon and hydrogen. Here C2H4, carbon hydrogen. Here C2H2, carbon hydrogen. What is this? This is ethane, this is ethene, this is ethyne. Okay, we'll study it afterwards. फिलहाल इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, तीन टाइप के कंपाउंड्स में, तीन टाइप के पार्ट्स में, कैटेगरीज में हमारे कंपाउंड्स डिवाइडेड होते हैं, जिनमें से बेसिकली हमको अभी इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करना है. ठीक है, जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के बेसिकली बॉन्ड्स बनाएंगे और फिर उसकी प्रॉपर नेमिंग करेंगे. तो नेमिंग करने से पहले आपको कुछ प्रीफिक्सेस पता होने चाहिए कि क्या क्या प्रीफिक्सेस यूज करेंगे हम किसी भी नेम को करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले. तो उन प्रीफिक्सेस को मैं आपको पहले बताऊंगी, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में जाएंगे. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको प्रीफिक्सेस बताती हूँ. तो नेम प्रीफिक्सेस जो आप यूज करेंगे while
नेमिंग, IUPAC नेम जब आप करेंगे, जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे, जब आप किसी कंपाउंड का नेमिंग करेंगे तो आप उसमें क्या प्रीफिक्सेस ऐड करेंगे। तो प्लीज कीप इन माइंड हियर, जब 1 रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा 1, मतलब कि एक कार्बन, आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उस हिसाब से उस पर्टिकुलर कंपाउंड का नेमिंग किया जाएगा। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे प्रीफिक्सेस क्या ऐड होंगे, ठीक है, प्रीफिक्सेस, ओके, सी हियर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लाइक अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो प्रीफिक्स क्या ऐड होगा, मिथ, मिथ, ओके। नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो प्रीफिक्स ऐड होगा इथ, ओके। थर्ड, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है तो प्रीफिक्स ऐड होगा प्रोप, ठीक, इसी तरीके से चलते जाएगा ये, ठीक। मैं आपको बताती हूँ आगे का भी। फर्स्ट होगा तो मिथ, अगर एक कार्बन एटम है, कहीं पे भी अगर कार्बन एटम एक दिख रहा है आपको तो उसका नाम हो जाएगा मिथ, मतलब प्रीफिक्स उसमें जो ऐड होगा, प्रीफिक्स जो उसके स्टार्टिंग में ऐड होगा उस नेम के, उसमें हम ऐड करेंगे मिथ, ठीक। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें आप CH4 में, यहाँ बड़ा सा लिखती हूँ CH4, यहाँ पे कितने कार्बन एटम हैं, एक बस कार्बन एटम है, तो इसका नाम अगर हम बोलेंगे आगे तो खैर हम जो भी बोलेंगे, पर फिलहाल इसका जो प्रीफिक्स ऐड होगा वो क्या होगा, मिथ। बाकी आगे हम देखेंगे, अभी जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो उसके आगे का हम प्रोसीड करेंगे ये सारी चीजें। अभी आप फिलहाल समझे कि जितने कार्बन के एटम्स होंगे उतने हिसाब से उसका नाम, उसके प्रीफिक्सेस उसमें ऐड किए जाएंगे। यहाँ एक कार्बन था इसलिए इसका मिथ। आप अगर C2H2 लेंगे तो इसका बताइए आप क्या होगा, C2H6 है, हाँ C2H2 कुछ भी ले लो, कार्बन का नंबर आपको देखना है अभी फिलहाल। तो आपका अगर 2 कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथ। यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे भी 2 है, इथ, ठीक, ओके। आगे हम देखते हैं, जैसे कि फोर्थ, अगर 4 नंबर कार्बन, मतलब 4 कार्बन हैं अगर, ठीक, तो होगा इसका ब्यूट। 5 कार्बन है, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है शायद, इसमें आए मत, मैं आगे लिख दूंगी, ठीक है। 5 है तो पेंट, 6 है हेक्स, ओके, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट। आई होप क्लियर है यहाँ तक, इसके ज़्यादा नीचे लिखूंगी तो शायद क्लियर ना हो, इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। 9 अगर होगा, एक ही 2 बचा है बस, ज़्यादा नहीं है। 9 अगर है, सॉरी 9 अगर है तो 8 तक आपने ऑक्ट लिखा, 9 है तो उसका होगा नोन, ठीक, और 10 है तो उसका हो जाएगा डेक, ओके। क्या क्या बोला मैंने बोला कि अगर एक कार्बन एटम है तो आप उसमें प्रीफिक्स ऐड करेंगे मिथ। ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए, एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक। क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर कार्बन के एटम्स के नंबर के प्रीफिक्सेस ही आपको याद नहीं होंगे तो नेमिंग करना तो दूर की बात है, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो प्रीफिक्सेस पहले आपको बाय हार्ट करना है, आपको एकदम याद करना है, फिर हम सफिक्सेस में जाएंगे कि सफिक्सेस क्या ऐड होंगे, वो हम आगे चीज़ें देखेंगे। फिलहाल अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रीफिक्स याद करना है, ठीक है। सबसे मेन आपका जो काम है वो इसके बाद आप प्रीफिक्स याद करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, अगर एक कार्बन का एटम है तो मिथ, 2 इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन एंड 10 डेक, ओके। यहाँ तक आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये क्या है, नेम ऑफ प्रीफिक्सेस, नेम प्रीफिक्सेस, जिसमें हम कार्बन के एटम्स के हिसाब से प्रीफिक्सेस उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नाउ विल गो टू आवर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन टॉपिक। इन दिस वी विल क्लासिफाई द हाइड्रोकार्बन्स इन 2 पार्ट्स, ओके, 2 कैटेगरीज, ओके, क्लियर। मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि मैं आगे के पार्ट्स आपको बता सकूँ। याद कर लीजिएगा ताकि आपको इजी हो नोमेनक्लेचर करने में, नेमिंग करने में, ठीक है। नाउ
देखिए अब क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन हम हाइड्रोकार्बन का करते हैं तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं बेसिकली, ठीक है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन, मतलब ये दो पार्ट्स में हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जो पहला कैटेगरी है वो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एलिफेटिक, आप इसको एसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, ठीक, या ओपन चेन बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम इसके हैं, ठीक। क्या है? एलिफेटिक, एसाइक्लिक, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, दो कैटेगरीज में आपके हाइड्रोकार्बन्स डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है एलिफेटिक, एसाइक्लिक या ओपन चेन, ठीक। दूसरा आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो डिवाइडेड होता है, अब यहाँ पे आप देखिए ये एसाइक्लिक है तो दूसरा क्या है? साइक्लिक, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। अगर ये एसाइक्लिक है तो वो है साइक्लिक। तो दो मेजर कैटेगरीज में हमारे हाइड्रोकार्बन्स डिवाइडेड होते हैं, दैट इज एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब जिसमें साइकिल या रिंग्स नहीं बने होंगे, जैसे कि आप, अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी है पिछले कहीं चैप्टर में, आपने ये देखा होगा कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, आपने पहले भी देखा होगा, या आपने रिंग वाली स्ट्रक्चर्स अगर देखी होंगी, थोड़ी सी भी आपको याद होगी कोई भी चीज़, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें रिंग नहीं होते हैं, जो स्ट्रेट कार्बन चेन्स रहेंगे, ठीक है। क्या रहेंगे? स्ट्रेट कार्बन और हाइड्रोजन के चेन्स रहेंगे, तो वो कहलाएगा एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब साइकिल नहीं है, उसमें रिंग स्ट्रक्चर नहीं है। साइकिल का व्हील कैसा होता है? सर्कुलर होता है, तो वो एसाइक्लिक है जिसमें रिंग नहीं है, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ओपन चेन से भी आप समझ सकते हैं, खुला हुआ चेन है, एकदम स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। साइक्लिक में क्या होगा? वो रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ओके, लेट्स सी आगे क्या होगा। ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये अगेन तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, दैट इज अल्केन, सेकेंड वन इज एल्कीन एंड द थर्ड वन इज एल्काइन। ओके, तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ओके, अब यहाँ पे आएगा आपका प्रीफिक्स, सफिक्स। प्रीफिक्सेस हमने देख लिया, अब यहाँ पे आएंगे आपके सफिक्सेस। ये जो एन, ये जो इन और ये जो आइन है लास्ट क्लास में, ठीक है। क्या मैंने बोला? देखिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूं कि जो लास्ट में एन है, इन है और जो आइन है, ये सब क्या है यहाँ पे? ये हैं सफिक्सेस, इनको कहा जाएगा सफिक्स। जो हर किसी कार्बन के नंबर के एटम्स या जो प्रीफिक्सेस हमने अभी इससे पहले पढ़े, उसके जस्ट आगे जो सफिक्सेस लगेंगे वो होगा एन, इन और आइन। अब आप देखेंगे कि एन, इन, आइन हम यूज कब करेंगे, कब लगेगा वो, ठीक है। तो जब अगर किसी कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह जो आपके कार्बन हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर आपके हाइड्रोकार्बन्स में कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, सिर्फ एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो उसमें जो लगेगा वो होगा एन, दैट इज एल्केन। जब डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, व्हाट? डबल बॉन्ड, जहां पे दो बॉन्ड्स होंगे, तो वहां क्या लगेगा? इन। सफिक्स में क्या लगेगा? इन। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा, जब हाइड्रोकार्बन्स के चेन्स होंगे और उसमें कहीं ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो वहां पे लगेगा आइन। ओके, आई होप यू आर क्लियर, यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि एन कब लगेगा? जब सिंगल बॉन्ड्स लगे रहेंगे, कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अगर कहीं हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड आपको दिख गया तो वो एन में सफिक्स उसमें ऐड हो जाएगा, और कहीं आपको हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो आइन जो है सफिक्स उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक। अब मैं पहले आपके प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को ऐड करके आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। अब आपको दिमाग में समझ में आएगा कि ये चीज़ें हो क्या रही थी। देखिए जैसे कि इथ था, ठीक है, इथ को हम सेकंड 2 कार्बन्स थे, अगर 2 कार्बन हो रहे थे, 2 कार्बन के एटम थे, तो हम उसका सफिक्स जो प्रीफिक्स जो लिख रहे थे वो क्या लिख रहे थे? इथ लिख रहे थे। अब इथ में मान लो कि ये कार्बन का हाइड्रोकार्बन बना रहा है और उसमें कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ इथ 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है, तो वो हो जाएगा इथेन।
और बाकी इसके अगल बगल आप हाइड्रोजन लगा दोगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और उसको आपको सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर किसका हो गया? इथेन का। समझ में आया? कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या है? इथेन। अगर यहीं कहीं डबल बॉन्ड होता, डबल बॉन्ड होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, मतलब ये बॉन्ड यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ एक बॉन्ड मान लो आपने तोड़ दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कितने कार्बन की वैलेंसी हो गई? आपको 4 हमेशा सेटिस्फाई करना है कार्बन की वैलेंसी को। तो ये क्या हो गया? 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, दोनों के कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। डबल बॉन्ड लग गया, कार्बन के एटम अभी तक 2 ही हैं, ठीक, तो हमने इथ ही यूज किया। सिंगल बॉन्ड था तो एन यूज किया था, लेकिन अब क्या हो गया? डबल बॉन्ड। तो अब हम यहाँ पे जो सफिक्स लगाएंगे हमारा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ईन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इथीन। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? इथीन का। अब देखो, अब मैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाऊंगी, ठीक है। अब देखो बॉन्ड को हमें तोड़ना भी पड़ेगा ना, क्योंकि अब कितने हो गए? अगर आप ऐसे ही कर दोगे तो गलत हो जाएगा। कैसे? 1 2 3 4 5 हो गए, नहीं, हमें 4 करना है। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड आप हटा दोगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4 इधर और 1 2 3 4 उधर, तो दोनों के कार्बन की वैलेंसीज 4 सेटिस्फाई होगी। अब ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में हम क्या लगाते हैं? आइन लगाते हैं। हम मिटा के इथ की जगह लिख देंगे आइन। तो ये क्या स्ट्रक्चर हो गया? किसका? इथाइन का। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, क्योंकि इसके आगे और भी बहुत सारे नोमेनक्लेचर्स आएंगे, तो अभी इजी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि शुरू में ही मैं आपको डिफिकल्ट बता दूंगी तो आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एन, इन, आइन का यूज़ कहाँ, कैसे, कब किया जा रहा था, ठीक है, और वो मिथ, इथ, प्रॉप का काम क्या था, ठीक, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे, थोड़ा साइक्लिक को देख लेते हैं, ठीक है। इसको तो हमने देख लिया, मिटाने की ज़रूरत है क्या? मिटा देते हैं। एन, इन, आइन आपको समझ में आ गया है। अब मैं साइक्लिक को बताती हूँ। देखो, साइक्लिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड था, वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होगा। एक को कहेंगे साइक्लो एल्केन, ठीक है, और दूसरे को हम कहेंगे एरोमेटिक, ठीक। एरोमेटिक, अरोमा वाली, खुशबू वाली चीज़ें, ठीक है। तो वो जो केमिकल्स होंगे वो एरोमेटिक होंगे। और जो साइक्लो एल्केन है, अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, स्प्लिट करके, एज इट इज़, जैसे हम अपने वीडियोस में स्प्लिटिंग वर्ड्स को करके आराम से चीज़ों को समझते हैं। तो साइक्लो मतलब क्या होगा? आप बोल सकते हैं इसको रिंग लाइक स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर, तो रिंग बोलो आप, ठीक है। और एल्केन तो आपको पता ही था, अभी जस्ट आपने पढ़ा कि एल्केन क्या है? सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो रिंग तो होंगे लेकिन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही बने होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे आपके? वो क्या कहलाएंगे? साइक्लो एल्केन। मतलब वो रिंग वाले स्ट्रक्चर भी होंगे लेकिन उसमें कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कि मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, अगर मैं रिंग साइक्लो एल्केन का स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो जैसे ये है, ठीक। सबसे पहले मैं भी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रही हूँ कार्बन की, अभी फिलहाल आप कार्बन के नंबर्स काउंट करें। 1 2 एंड 3 कार्बन है। अगर आप रिकॉल करें तो आपको जो प्रीफिक्सेस मैंने बताए थे उसमें 3rd नंबर पे जो 3 कार्बन एटम्स होते थे उसका नाम होता था प्रॉप, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले ही प्रॉप, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ज़्यादा नीचे हो गया क्या? ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा ताकि क्लियर हो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहीं पे भी। यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्लियर करने के लिए। तो प्रॉप लिख दिया हमने। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो भाई, 1 2 3 4, चलो 2 हाइड्रोजन लगा दो सब तरफ। क्यों? आप पूछोगे क्यों? तो 1 2 3 4 हमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करते जानी है, ठीक है, छोड़ना नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि फिर वो गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया, कार्बन की वैलेंसीज भी सेटिस्फाई हो गई, स्ट्रक्चर भी साइक्लिक बन गया, सिंगल बॉन्ड भी हो गया, सब चीज़ हो गया। अब इसका नाम क्या रखेंगे? नाम क्या रखेंगे? चलो 3 कार्बन थे तो हमने प्रॉप कर दिया। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आपका जो सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा? एन, ठीक। और साथ ही साथ ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसलिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, मतलब शुरू में आप साइक्लो लगा दोगे तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ओके, गुड। आई होप यू आर क्लियर। एरोमेटिक स्ट्रक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगी?
एरोमेटिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं? बेंजीन का। बेंजीन का स्ट्रक्चर और उसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। अब देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। मैं उसी के नीचे बना देती हूँ, यही बना देती हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ साइक्लोप्रोपेन। आप इसको ध्यान में रखिए, इस स्ट्रक्चर को। बेंजीन का स्ट्रक्चर अभी आप फिलहाल देखिए। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है और आपको सिर्फ बेंजीन का ही स्ट्रक्चर इसमें पढ़ना है और कुछ याद नहीं रखना है। साइक्लोएल्केन्स पढ़ना है और एरोमेटिक पढ़ना है साइक्लिक में। बाकी जो मेन है आपका एलिफेटिक है, जिसमें ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करना है आपको। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए बहुत सिंपल है, 6 कार्बन है, अरेंज कर दो। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इधर, ओके, ठीक है ना। ये थोड़ा नीचे कर देते हैं कार्बन को, अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा प्रॉपर दिखना चाहिए। ओके, 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, अरे 6 हो गए। अब क्या करना है? हाइड्रोजन 6 करना है इसमें, ठीक है। तो आप हाइड्रोजन को 6 करने से पहले देखिए, इसके पहले आपको डबल बॉन्ड लगाना है, लेकिन अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ? यहाँ, इसको छोड़ के यहाँ, इसको छोड़ के यहाँ, ठीक है। अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक। तो इस टाइप के आपने अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स लगा दिए। अब आप वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन बस लगेगा। 1 2 3, एक हाइड्रोजन, सब में एक एक हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। सब में आप एक एक हाइड्रोजन लगाते जाओ। और ये स्ट्रक्चर जो हो गई, ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? ये स्ट्रक्चर हो गई बेंजीन की, जिसको ही आपको सिर्फ यही पढ़ना है इसमें, ठीक है, एरोमेटिक में। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लिया आपने साइक्लोएल्केन देख लिया कि क्या होता है, एलिफेटिक ओपन चेन स्ट्रक्चर्स देख लिए, मेन आपने देख लिया कि क्या सफिक्सेस क्या प्रीफिक्सेस ऐड होंगे। अब हम नेक्स्ट सेशन में और कुछ नोमेनक्लेचर का टॉपिक लेके आएंगे। फिलहाल आज का जो वीडियो है मेरे इन टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से एंड होता है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।